In this video, let us discuss typical sums on dot product. Now, I'll divide this typical sums into two parts, that is part 1 and part 2. In this video, we're going to discuss part 1, which will be focusing basically on angle between two vectors. Okay, so let's start this video with the question number 1. Now, this question says if A bar, B bar, and C bar are three vectors such that mod of A bar is equal to mod of B bar is equal to mod of C bar, and they are mutually perpendicular vectors. Then show that A bar plus B bar plus C bar is equally inclined to A bar, B bar, and C bar. Now, in this sum, if you see, the key word is A bar plus B bar plus C bar is equally inclined to A bar, B bar, and C bar. Now, if you understand, equally inclined का मतलब होता है to make same angle. Okay, to make same angle. और जैसा मैंने बोला angle is not this implies dot product. Okay, so this is my first thought when I see this question. So I need to basically take a dot product between the vectors जिसके बीच का एंगल अपने को इक्वल प्रूव करना है. ठीक है. So in the question they are clearly saying that we need to prove that the angle made by A bar plus B bar plus C bar with A bar, angle made by this with B bar, and angle made by this with C bar is same. So basically we are talking of three angles. So let's start the solution by defining one angle at a time. Okay, so I say let theta 1 be the angle between A bar plus B bar plus C bar and A bar. Okay, so now let us take the dot product of these two vectors. So I say A bar plus B bar plus C bar dot with A bar is equal to magnitude of the vectors into cos theta, isn't it? So I write cos theta 1. चलो इसको एडजस्ट करते हैं. व्हाट आई गेट cos theta 1 is equal to A bar plus B bar plus C bar dot A bar upon mod of A bar plus B bar plus C bar into mod of A bar. I said in the previous video only, if the values of the vectors are not given, what we do? Open the bracket. So let's open the bracket. In numerator I get A bar dot A bar plus B bar dot A bar plus C bar dot A bar upon mod of A bar plus B bar plus C bar into mod of A bar. Now in the question, if you see, they have already said that the vectors are mutually perpendicular, and the word perpendicular implies their dot product is 0. So A bar dot B bar, B bar dot C bar, and C bar dot A bar all are 0. So here in numerator, if you see, what is vector dot vector? Mod of vector square. Is not the remaining two terms would be 0. In the denominator, we have mod of A bar plus B bar plus C bar into mod of A bar. So mod of A bar will get cancelled. So with this we got cos theta 1 is equal to mod of A bar upon mod of A bar plus B bar plus C bar, and this would be your result number 1. Let us repeat the same process for the second angle. So let theta 2 be the angle between A bar plus B bar plus C bar and B bar. So this time we'll take a dot product of A bar plus B bar plus C bar with B bar. So what do we get here? We get mod of A bar plus B bar plus C bar into mod of B bar cos theta 2. Now let's get cos theta 2. So what is cos theta 2 is equal to? This time we get A bar plus B bar plus C bar dot with B bar upon mod of A bar plus B bar plus C bar into mod of B bar. Now just like previous step, what we do, we open the bracket. So I get A bar dot B bar plus B bar dot B bar plus C bar dot B bar upon mod of A bar plus B bar plus C bar into mod of B bar. Again, is not A bar dot B bar and C bar dot B bar would be 0 because the vectors are perpendicular, and vector dot vector is mod of vector square.
So we get a bar plus b bar plus c bar into mod of b bar. Now एक mod of b bar will get cancelled. So what I get eventually, mod of b bar upon mod of a bar plus b bar plus c bar. So that is how we get cos theta 2, result number 2. Finally, let us define theta 3. So can I say let theta 3 be the angle between the vectors a bar plus b bar plus c bar and c bar. चलो तो ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. सो व्हाट आई गेट, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू मॉड ऑफ सी बार कॉस थीटा 3. बराबर. लेट्स एडजस्ट. व्हाट आई गेट, कॉस ऑफ थीटा 3 इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार अपॉन mod of a plus b plus c into mod of c bar. So now in numerator what we do, let's open the bracket. If I open the bracket, I get a bar dot c bar plus b bar dot c bar plus c bar dot c bar upon mod of a bar plus b bar plus c bar into mod of c bar. Again the dot product a dot c and b dot c would be 0. Vector dot vector is mod of vector square upon mod of a plus b plus c into mod of c bar. One mod of c bar will get cancelled. Okay, so what I get here, is it not, I get cos theta 3 is equal to mod of c bar upon mod of a bar plus b bar plus c bar, and that is your result number 3. Now if you look at all the three results, that is result number 1, result number 1, result number 2 and result number 3, do you find that the denominator of all result is same? So can I say in result 1, 2 and 3, result 1, 2 and 3, denominator is same, and they have also said mod of a equal to mod of b is equal to mod of c. This implies numerator is also same. Okay, so अगर denominator भी same है, numerator भी same है, तो can I say therefore cos theta 1 is equal to cos theta 2 is equal to cos theta 3, which implies theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3, and that's what we wanted to prove. Is it not? This implies finally we can say the vector a bar plus b bar plus c bar is equally inclined to a bar, b bar and c bar. So with this we are done with the first typical type sum. Okay, now this sum I don't expect to come in exam, but then the result of this is so very important for us. Okay, ये हमको 3D geometry में भी apply करना है. So let me make it a note point for this. बराबर. सेम सम को अगर आप ग्राफिकली इमेजिन करो तो द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज इट नॉट ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार परपेंडिकुलर टू सी बार दिया है, एंड नंबर 2 आपको क्या दिया है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी. ओके, चलो इसका जरा डायग्राम सोचते हैं. सो व्हाट डू वी हैव 3 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड. तो ये आपका हो गया मॉड ऑफ ए बार, सॉरी ये आपका हो गया वेक्टर ए बार. Second is your vector b bar and this is your vector c bar. They are mutually perpendicular and they are equal in magnitude. Now अगर मैं आपको बोलूँ इसमें से आप क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो कैन आई से आई कैन कंस्ट्रक्ट ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो आई ड्रॉ अ स्क्वायर हियर, सेम साइज का स्क्वायर पीछे बना देते हैं. ओके, एंड इफ आई जॉइन दिस वर्टेक्स इज नॉट, आई गेट अ क्यूब. Now I said cube because all sides are equal and the sides are perpendicular also. So can I say here your a bar, b bar and c bar under given conditions forms cube. Okay, if you just note one more thing, if I call this as OF, okay, एंड अप्लाई ट्राइंगल लॉ, तो मुझे ये यहाँ से इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, ओके, तो देन आई कैन गेट दिस वेक्टर एज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. ओके, यू कैन प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइंगल लॉ. बराबर, आई एम नॉट प्रूविंग इट, आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग दिस रिजल्ट. सो हियर ओ एफ बार इज वॉट, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. और अभी अभी हमने प्रूव किया इन द प्रीवियस सम दैट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बार, बी बार एंड सी बार. Now let's replace this by the word diagonal of the cube
and this by the side of the cube. So can I say here the conclusion is from above question we can say that the diagonal of a cube, okay, bracket में that is a bar plus b bar plus c bar is equally inclined to edges of the cube, okay, and the edges are what, that is a bar, b bar and c bar. ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली इमेजिन करें तो हमको एक क्यूब दिख रहा है जिसका डायगनल इक्वली इंक्लाइंड है विद द साइड. नाउ द रिजल्ट विच आई वांट यू टू रिमेंबर आउट ऑफ दिस इज कि वो एंगल है क्या. बाय द वे यहाँ तो हमने एंगल का इक्वालिटी प्रूव किया है. अब अगर मुझे एंगल चाहिए, ओके, दैट इज स्टार मार्क, ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन diagonal of cube and the edge of cube is it not, from the above result we can say cos theta 1 is equal to mod of a bar upon mod of a bar plus b bar plus c bar. आप अब इसमें थीटा 1 लो, थीटा 2 लो, थीटा 3 लो, चॉइस इज योर्स. ठीक है, सो फिलहाल वी टेक इट एज थीटा 1. ना अब मुझे उसका वैल्यू चाहिए. ओके, ना इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस इज नॉट, आई कैन टेक द डिनोमिनेटर. सो कंसीडर, डिनोमिनेटर को लेते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. ओके, ना मॉड दिखा तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, बट स्क्वायर करने के लिए अदर साइड चाहिए, तो लेट अस टेक इट एज लैम्डा. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, व्हाट आई गेट, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. लेट्स यूज द फॉर्मूला. इज नॉट द फॉर्मूला सेज तीनों का स्क्वायर करके ऐड plus 2 time dot product of first and second, 2 time dot product of second and third, plus 2 time dot product of first and third. बराबर. Now is not the magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of C, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है. बराबर. एंड द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी तो ज़ीरो होगा. Okay, so with these two results in my mind, can we write this as 3 time mod of a square is equal to lambda square. So what is the value of lambda? Can I say root 3 mod of a? And that is how we got the mod of a plus b plus c ka value as root 3 times mod of a bar. So if I take this value and put it inside the value cos theta 1, which was mod of a upon mod of a plus b plus c, जिसका value ये मिला, mod of a get cancelled, what I get, 1 by root 3. So eventually theta 1 is cos inverse of 1 by root 3, and this is the value you should remember. Okay, so ये सम से हमको एक कंक्लूजन मिला दैट डायगोनल ऑफ अ क्यूब उसके एज के साथ कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 बनाता है. ठीक है, सो 2 थिंग्स टू नोट हियर, आई रिपीट, डायगोनल, आई बेटर से एंगल बिटवीन diagonal and edge of a cube is cos inverse of 1 by root 3. Also equally inclined. ये वर्ड ज़रा ध्यान रखना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए cos inverse of 1 by root 3. Okay, so these two things I would like you to remember as a result of this sum which we have just now solved. ठीक है, so with this we are done with the first question. Let's take up the second question under this type. Now this question number 2, they say find angle between diagonals of a parallelogram constructed on 5a bar plus 2b bar and a bar minus 3b bar, where mod of a bar is equal to 2 root 2, mod of b bar is equal to 3, and angle between a bar and b bar, ये notation है, is pi by 4. Okay,
So let's look at this. Here in this sum you can clearly see that what they want is angle between the diagonals, और वो भी किसका, पैरेललोग्राम का. ठीक है. So if you can recall the कोलीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, वहाँ पे हमने एक नोट पॉइंट लिखा था दैट इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम, ओके, वी हैव टू चॉइसेस. एक है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ए बी बार इक्वल टू डी सी बार, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. और दूसरा था अज्यूम एडजेसेंट साइड्स एस ए बार एंड बी बार. तो इन दैट केस एक डायग्राम हमने बनाया था, अगर याद है तो, दिस वाज ए बार, दिस वाज बी बार. तो ये जो वेक्टर होगा वो होगा ए बार प्लस बी बार, और ये जो ऊपर से नीचे एक वेक्टर आएगा दैट विल बी ए बार माइनस बी बार. ओके. सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, इज इट नॉट आई विल बी गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. द रीज़न फॉर दैट इज़ हमको क्वेश्चन में देखो कंस्ट्रक्टेड ऑन, मतलब ये तुम्हारे साइड्स है, बराबर. ओके. विद दिस साइड्स हमको बात हमको डायगोनल का करना है. ठीक है. इट्स जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ ए बार बी बार हम लोग पी बार क्यू बार ले लेंगे. ठीक है. बिकॉज ए बार बी बार क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है. सो आई विल से लेट पी बार इज इक्वल टू 5a बार प्लस 2b बार, क्यू बार इज इक्वल टू ए बार माइनस 3b बार, बराबर. ओके. दिस आर be the sides of parallelogram. ठीक है. So therefore the diagonals will be p bar plus q bar and p bar minus q bar. एक काम करते हैं, let us name this as m bar and n bar. ठीक है. इसको एक अलग नाम दे देते हैं. So let's add the vector. what I get 6a bar, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस बी बार, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट किया तो 4a बार, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 5b बार. ओके. सो विद दिस अपने पास दो वेक्टर्स रेडी हो गए, और हमको किसके बीच का एंगल चाहिए, डायगोनल्स के बीच का. सो टू गेट एंगल बिटवीन डायगोनल्स, दैट इज m बार एंड n बार, कंसिडर, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे उसका डॉट प्रोडक्ट. सो m बार डॉट n बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ m बार मॉड ऑफ n बार कॉस थीटा. ओके. नाउ प्लीज़ डोंट मिक्स अप, ये जो थीटा लिखा वो π/4 नहीं है, बिकॉज दिस एंगल जो π/4 है वो ए बी के बीच का एंगल है, और हमको तो एम एन के बीच का एंगल का बात करना है. ठीक है. तो यहाँ पे प्लीज़ थीटा की जगह पे π/4 रखने का नहीं. ओके. ठीक है. नो प्रॉब्लम. लेट अस एडजस्ट इट. सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, m डॉट n अपॉन मॉड ऑफ m मॉड ऑफ n. ये अपने को अब निकालना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ m डॉट n. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m बार हियर. m बार का वैल्यू है 6a बार माइनस b बार डॉट विथ इज नॉट n बार का वैल्यू अपने को मिला 4a बार प्लस 5b बार. इजंट इट, बराबर. दोनों को ऐड किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. येस. नाउ इफ़ आई से व्हाट नेक्स्ट, तो आप लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली ओपन द ब्रैकेट. तो 6 4 ज़ा 24 a बार डॉट a बार, 6 5 ज़ा 30 a बार डॉट b बार, माइनस 4 b बार डॉट a बार, एंड फाइनली माइनस 5 b बार डॉट b बार. नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज a बार डॉट a बार, मॉड ऑफ a स्क्वायर. इज़ नॉट a डॉट b और b डॉट a सेम होता है, तो सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा 26 a बार डॉट b बार, और यहाँ पे आएगा माइनस 5 मॉड ऑफ b का स्क्वायर. नाउ इज़ नॉट, अगर आप सम को देखते हैं तो ऑल द डिटेल्स आर गिवन. मॉड ऑफ a बार उन्होंने दिया है 2√2 का स्क्वायर, बराबर. इज़ नॉट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉड a मॉड b कॉस थीटा, बराबर. माइनस 5 यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर, एंड मॉड इज मॉड ऑफ b गिवन 3 का स्क्वायर. सो लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर. व्हाट आई गेट 24, 2√2 का स्क्वायर होगा 8 प्लस 26, यहाँ पे आएगा 2√2, b का वैल्यू 3, थीटा का वैल्यू cos 45 है, बराबर ना. एंड cos 45, लेट्स राइट हियर 45 ओनली, सीधा cos 45 इज 1/√2. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/√2. ओके. माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9. सो √2 गेट कैंसल. नाउ वी गेट
192 बराबर, ओके, प्लस 26 टू ज़ा 50 2 into 3, 3 2 are 6, 5 3 are 15. So 156 minus 45. Okay. So this value what we got. Now let us calculate further. What I get here? I get here 1. Okay. So if I add it, I get 8. I get 4. 348 minus 45. Eventually I get 303 as the result. Okay. Okay, so we got the value of the dot product. Let us call this as result number 1. Now we need to find mod of a bar. Okay, so let's go for mod of a bar. So mod of a bar मतलब mod of 6a bar minus b bar. अब अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है. व्हाट डिड आई से? मैग्नीट्यूड जब भी आए और अटक जाए तो हमको क्या करना है? लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड. 6a bar माइनस b bar का स्क्वायर. इफ़ आई ओपन व्हाट आई गेट 36 इज़ नॉट, यहाँ पे आएगा mod of a स्क्वायर माइनस 12 a bar dot b bar plus mod of b का स्क्वायर. So what I get here 36 mod of a square minus 12 into mod of a mod of b cos theta, theta is pi by 4, into mod of b का square. So let's put the value. I get 36 2 root 2 का square minus 12 into mod of a is 2 root 2, b का वैल्यू 3 cos 45 1 by root 2 और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर. तो यहाँ पे रूट 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो व्हाट आई गेट 36 8 ज़ा, ओके, माइनस 24 3 ज़ा प्लस 3 का स्क्वायर 9. ओके, सो व्हाट आई गेट हियर इज 288 minus 72 plus 9. Okay, so if I subtract I get यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, 216 plus 9 which is 225. Now this what I got is mod of m का square. ठीक है, so what is mod of m is not, यहाँ पे आपको mod of m का square मिला है तो eventually mod of m is 15. ये आपका result number 2 हो गया. Now let us go for mod of n. Okay, so mod of n का मतलब mod of 4a bar plus 5b bar. ठीक है. नाउ हियर इफ़ आई से अगेन मॉड आया, हम लोग को कैलकुलेशन करना है. सो व्हाट वी डू, वी स्क्वायर द वेक्टर. सो दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं. 4a बार प्लस 5b बार का स्क्वायर. ओके, सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट. व्हाट आई गेट 16 मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 40 a bar dot b bar plus 25 mod of b का square. Okay, so if I simplify I get 16 mod of a का square plus 40 mod a mod b cos theta, theta मतलब pi by 4 plus 25 mod of b का square. Let's put the value. So what I get 16 2 root 2 का square plus 40, यहाँ पे आएगा 2 root 2 into 3 into cos 45 is 1 by root 2 plus 25 3 का square. ठीक है, सो विद दिस इज नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 128 प्लस 240, यहाँ पे रूट टू कैंसिल हो गया बराबर प्लस 225. सो इवेंचुअल रिजल्ट इज 593. ओके, नाउ व्हाट यू गॉट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ n स्क्वायर. सो व्हाट इज मॉड ऑफ n? इट इज नथिंग बट 593 का रूट. दिस स्क्वायर रूट यू कैन नॉट फाइंड आउट, तो लिव इट एज इट इज. ठीक है, विद दिस हमारे पास सब डिटेल रेडी हो गया. दिस योर रिजल्ट नंबर सी. Okay, so you got, I better say 3. ठीक है, so let us substitute 1 2 and 3 in a. Substitute 1 2 and 3 in result a. So I got cos theta is equal to numerator में 303 which is m bar dot m bar upon, यहाँ पे आएगा 15 into root of 593. ओके, 3 से कैंसिल होगा, सो ऊपर आएगा 101, 5 3 are 15 upon 593. We cannot simplify further, so theta is equal to cos inverse of 101 upon 5 root 593 and that is your final answer. ठीक है, so it is an excellent sum where they say find the angle between the diagonals of a parallelogram. मतलब उन्होंने पैरेललोग्राम से कनेक्ट किया. आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे आता है तो ये नोट पॉइंट आप कभी भूलना नहीं. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट फॉर पैरेललोग्राम बेस्ड सम्स. और अगर साइड्स और डायगोनल का बात हुआ तो अपने को ये डायग्राम रिफर करना है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. नाउ इन दिस सम
Question number 3. Now this is one of my favorite sum. If A bar and B bar are unit vectors, then find greatest sorry, we'll take this in magnitude वाले sum में, ठीक है? Just a sec. So the next sum what we take is yes. Yeah. So now the next sum here, it is important for CET. Now this sum they say if AB is equal to H is the hypotenuse of a right angled triangle ABC, then find AB bar dot AC bar plus BC bar dot BA bar plus CA bar dot CB bar in terms of H. It is basically an MCQ sum जहाँ पे ऑप्शन में H के टर्म में डिटेल्स रहेंगे, ठीक है? So let's start now. In this sum, let's start with the required. What they want is AB bar dot AC bar plus BC bar dot BA bar plus CA bar dot CB bar. मतलब हम लोग को 3 डॉट प्रोडक्ट का बात करना है, ठीक है? नाउ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एट द मैक्स वी कैन राइट ए बी बार एज बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार एंड ओपन द ब्रैकेट. यहाँ पे भी ओपन द ब्रैकेट, यहाँ पे भी ओपन द ब्रैकेट. ओके, सो दैट इज़ माय फर्स्ट थॉट. तो मेरा फर्स्ट थॉट था, आई रिपीट, इसको मैं लिखूँगा बी बार माइनस ए बार डॉट सी बार माइनस ए बार प्लस ब्ला 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 एंड ओपन ब्रैकेट्स. बराबर? ओके, लेकिन यहाँ पे करने से पहले हम लोग गिवन डेटा जरा देख लेते हैं, ठीक है? सो दिस वी शुड अवॉइड इट. ओके, नाउ व्हाई वी शुड अवॉइड, जरा समय वापस देखो. ए बी का वैल्यू एच दिया है और एक राइट एंगल ट्राइंगल का बात हो रहा है. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. पहले ये चीज़ का यूज़ कर लेते हैं एंड देन वी विल सिंप्लीफाई, ठीक है? सो इन द सोल्यूशन लेट अस इमेजिन अ राइट एंगल ट्राइंगल where your AB is the hypotenuse, ध्यान रखना, और C यहाँ पे 90 डिग्री है. Okay, now if C is the 90 degree, can I say CA perpendicular to CB? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आउट गोइंग ध्यान रख रहा हूँ मैं, बराबर, और इसका लेंथ H है, ठीक है? सो इफ़ CA डॉट CB परपेंडिकुलर है तो इज नॉट उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. दैट इज़ योर रिजल्ट नंबर 1. एंड नाउ इफ़ यू सी योर रिक्वायर्ड पार्ट, तो उसमें आपको CA डॉट CB दिखेगा. ओके, विच मीन्स ये पार्ट तो 0 हो गया. And that is why we should start this sum with the given data first. So now I say consider AB bar dot AC bar plus BA bar dot BC bar plus CA bar dot CB bar. ठीक है? So here from 1 can I say AB bar dot AC bar plus BA bar dot BC bar, okay, BA bar dot BC bar plus 0 can I say from 1. चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया. तो अब क्या करें? तो अब इफ़ यू सी नाइसली, इज इट नॉट आई कैन फाइंड द वेक्टर ए बी बार एंड बी ए बार. तो एक काम करते, पहले इसको सीधा कर लेते हैं. तो ए बी बार डॉट ए सी बार माइनस ऑफ, इफ़ यू रिकॉल वेक्टर को हम जब उल्टा करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है? ये हो गया. नाउ कैन वी टेक ए बी बार कॉमन? चलो ठीक है, ए बी बार को कॉमन ले लिया. डॉट प्रोडक्ट, अंदर क्या बचेगा? ए सी बार माइनस बी सी बार. सब्ट्रैक्शन अवॉइड करते हैं, सब्ट्रैक्शन अवॉइड. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस प्लस में कन्वर्ट कर देंगे. सो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू प्लस अगेन बाय राइटिंग ए बी बार डॉट ए सी बार प्लस. अगर मैं इसको उल्टा कर देगा तो साइन बदल जाएगा. एंड नाउ इफ़ यू आर रियली स्मार्ट यू कैन सी अ triangle law. Okay, so by triangle law do we say that here I got AB bar dot AB bar, and what is AB bar dot AB bar? Mod of AB ka square. And now magnitude of AB is given as h, so answer is h square. So it's a very nice sum which includes perpendicular and law of triangle. Okay, is that clear, this one? Let's move to the question number 4. ठीक है,
Now in question number 4, what we do it is, let's talk about hexagon concept. ये भी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कर दिया था, ठीक है. इफ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर hexagon, then show that mod of ए बी बार, मॉड नहीं आएगा यहाँ पे, डॉट ए एफ बार इज इक्वल टू माइनस हाफ मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर. ठीक है. एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल सम, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिक्वायर्ड. हमको क्या चाहिए, ए बी डॉट ए एफ बराबर, ये प्रूव करना है. तो हम लोग एल एच एस लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हेक्सागन का बात हो रहा है. इफ़ यू नो लिटिल बिट अबाउट रेगुलर हेक्सागन, इज इट नॉट, रेगुलर हेक्सागन में इफ़ यू सी ए बी सी डी ई एफ, हमको ए बी और ए एफ का डॉट प्रोडक्ट चाहिए. एंड इफ़ यू वांट डॉट प्रोडक्ट, हमको उसके बीच के एंगल का पता होना चाहिए. एंड एवरीवन मस्ट बी नोइंग दैट इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्री. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कंसीडर, हम लोग डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं ए बी बार डॉट ए एफ बार. व्हाट इज़ द फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए बी बार मॉड ऑफ ए एफ बार कॉस ऑफ 120 डिग्री. अगर आपको आइडिया है तो कॉस ऑफ 120 होता है -1/2. सो दिस इज नथिंग बट -1/2. नाउ सिंस it is a regular hexagon. Now what do you mean by regular hexagon? All sides are equal, and that is where the confusion lies. अगर all sides are equal होगा तो can I write mod of AB minus half. So what I got, -1/2 mod of AB का square. अब सब में आप कंफ्यूज होंगे, सर ए बी तो दिया नहीं है, बट इज इट नॉट आपका मॉड ऑफ ए बी वो मॉड ऑफ बी सी से भी तो इक्वल है. ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. सो दिस इम्प्लाइज ए बी डॉट ए एफ. ओके, मतलब बात ए बी और ए एफ का हो रहा है, बट आंसर किसके टर्म में दिया है, बी सी का स्क्वायर. ओके, सो हैंस प्रूव्ड. सो द क्वेश्चन वॉज नॉट टफ, इट इज स्लाइटली ट्रिकी. ओके, सो प्लीज रिमेंबर रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. Now here in this question they say in a parallelogram ABCD, AB bar is equal to A bar, AD bar is equal to B bar, and AC bar is equal to C bar. Then show that DB dot AB bar is equal to 3A square plus B square minus C square upon 2. Okay, this is also one of my favorite sum. Okay, the reason for favorite is it is based on parallelogram. Okay, these are all really nice sum, so I would underline parallelogram ABCD. चलो ठीक है. बट एज यूजुअल विल नॉट स्टार्ट विद रिक्वायर्ड, गिवन, वी स्टार्ट विद रिक्वायर्ड. तो रिक्वायर्ड में मुझे क्या चाहिए, डी बी डॉट ए बी. ओके, तो लेट अस सर्च डी बी और ए बी बाय द वे है क्या. और अगर आप ध्यान से देख रहा है तो पैरेललोग्राम में डी बी एक डायगोनल है और ए बी एक साइड होगा ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो लेट्स डू वन थिंग, उनके डॉट प्रोडक्ट लेने से पहले एक डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं. ओके, सो डायग्राम में उन्होंने क्या दिया है, दिस इज़ योर डायग्राम ए बी सी डी, जिसमें ए बी बार को उन्होंने ए बार लिया है, ए डी बार को बी बार लिया है और ए सी बार को उन्होंने सी बार लिया है. आर यू गेटिंग इट. लेकिन एक सेकेंड, अगर आपने पैरेललोग्राम का नोट पॉइंट याद रखा है तो इज़ इट नॉट, ये जो डायगोनल होता है फॉर अस इट इज़ ए बार प्लस बी बार, और ये आपका पूरे सम का गेम चेंजर होगा. So those who know the note point will not call this as C bar. For us it is A bar plus B bar. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. उनको DB का बात करना है तो DB ज्वाइन करते हैं. एक सेकेंड, ये वेक्टर भी तो अपने पास है. सो इज नॉट, यहाँ पे आएगा A बार माइनस डी बी बार. सो कैन आई से फ्रॉम DB बार इज इक्वल टू A बार माइनस बी बार. चलो अब कंसिडर करते हैं
डी बी बार डॉट उनको क्या चाहिए ए बी बार, ठीक है। सो व्हाट इज डी बी का वैल्यू, जस्ट नाउ वी गॉट ए बार माइनस बी बार डॉट ए बी बार का वैल्यू इज ए बार। अब यहाँ पे बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं सर हम लोग ये क्यों यूज़ नहीं किया, डी बी बार डॉट ए बी बार इज मॉड ऑफ डी बी मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा। प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना, डी बी और ए बी के जो बीच का एंगल है वो हमको सब में दिया नहीं है, क्वेश्चन में किधर भी थीटा नहीं दिया है, ओके। एंड व्हाट वी वांट इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। सो ये रीज़न की वजह से हम लोग को ये फॉर्मूला अवॉइड करना पड़ेगा सिंस थीटा इज़ नॉट गिवन, बराबर। सो ऑब्वियसली मेरा पहला थॉट तो यही फॉर्मूला था लेकिन वो नहीं दिया था एंड दैट इज़ वाई आई गो फॉर पोजिशन वेक्टर। चलो ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, एज आई सेड वैल्यू नहीं दिया तो क्या करने का, ओपन द ब्रैकेट। सो व्हाट आई गॉट ए बार डॉट ए बार बी बार डॉट ए बार, बराबर। व्हाट इज ए बार डॉट ए बार, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी बार डॉट ए बार, और मॉड ऑफ ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बी बार डॉट ए बार, रिजल्ट नंबर 1। सो जब मैंने पहली बार ये सम सॉल्व किया तो पहले तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करके फंस गया, ओके। तो देयर वेयर आई रियलाइज़ कि हमको थीटा नहीं दिया होगा तो ये फॉर्मूला अवॉइड करना है। नंबर 2, अगर आपने देखा तो फिर मैंने पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया, ओके। तो उसके रिजल्ट्स उसमें रिप्लेस किया और उसको ब्रैकेट ओपन किया तो मैं यहाँ पे आके फंस गया। नाउ अगर आपको रिक्वायर्ड पे अगर आपका ध्यान है तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी वांट ए स्क्वायर अपने को चाहिए, तो यहाँ से कौन सा चीज़ अपने को नहीं चाहिए, ए डॉट बी। एंड इफ़ यू नो ए डॉट बी कहाँ से आता है, तो ए डॉट बी कम्स फ्रॉम, ओके, if you can recall the concept of a bar dot b bar is not, it comes from mod of a bar plus b bar स्लैश mod of a bar minus b bar। अगर ये नोट पॉइंट आपने बाहर किया है तो मेरे हिसाब से सम खत्म हो जाता है। सम में किधर a प्लस बी माइनस बी दिख रहा है क्या, तो यस वी सी दैट हमारा जो c बार है वो a बार प्लस b बार है, ओके। सो कैन आई नाउ से वी हैव एंड दिस वाज अ वेरी नाइस ट्विस्ट, सडनली हम c बार पे चले गए, ठीक है फाइन। सो अब मैं क्या करूँगा, इसका मॉड लूँगा बिकॉज मॉड ऑफ ए प्लस बी चाहिए मुझे। मॉड दिखा तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बराबर। तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर। चलो उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको हम लिख लेते सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2 ए बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वायर। सो लेट अस अरेंज टू गेट ए बार डॉट बी बार। तो ए बार डॉट बी बार क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2, और ये मिल गया अपना रिजल्ट नंबर 2। So now it's all said and done. Can we take the value and put it inside result number 1? So substitute 2 in 1. What we get? db bar dot ab bar is equal to, it was a square minus c square minus a square minus b square by 2। चलो LCM लेते हैं, 2a square minus c square plus a square plus b square by 2। So final result 3a square plus b square minus c square by 2, and that is what they wanted in the answer, okay, 3a square plus b square minus c square by 2। So it is an excellent sum, I repeat here। यहाँ पे जो सीखा वो ये चीज़ सीखा दैट अगर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला दिमाग में आएगा, बट दिस फॉर्मूला वी अवॉइड व्हेन थीटा इज़ नॉट गिवन, ओके। सो अवॉइड करना था, फाइन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। If this is one of the question which came in AI triple E, that is equivalent to JE, if V bar and W bar are two mutually perpendicular vectors and U bar is equal to AV bar plus BW bar, where A and B belongs to real number but not 0. Okay, then find angle between U bar and W bar. Okay, chalo, let us start the question now.
अब ये क्वेश्चन में लेट्स स्टार्ट विद द रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड बोलता है फाइंड एंगल बिटवीन यू बार एंड डब्ल्यू बार. जैसा आपने बोला फाइंड एंगल बिटवीन यू बार एंड डब्ल्यू बार, इज नॉट मेरे दिमाग में आएगा यू बार डॉट डब्ल्यू बार इज मॉड ऑफ यू बार मॉड ऑफ डब्ल्यू बार कॉस थीटा. दिस इज़ माई फर्स्ट थाट. ठीक है, अब सब में ज़रा देखते हैं कि ऐसा कुछ अपने पास है क्या. तो क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बट कौन, वी एंड डब्ल्यू. जैसा बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज़ नॉट, उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे. तो सोल्यूशन में कैन आई से नंबर वन वी बार परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू बार, देयरफॉर वी बार डॉट डब्ल्यू बार इक्वल टू ज़ीरो. ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया. देखो सब में और एक चीज़ उन्होंने दिया है अगर आप देख रहे हो तो, ऑल्सो इज़ नॉट दे हैव गिवन अस यू बार इज इक्वल टू, यू बार का वैल्यू दिया है ए वी बार प्लस बी डब्ल्यू बार. ओके डन, यहाँ तक ओवर हो गया. अब हमको रिक्वायर्ड देखो, दिस वॉज गिवन एंड रिक्वायर्ड मेरे सामने. सो इफ़ यू सी दिस इज़ योर रिक्वायर्ड, मतलब आपको यू डॉट डब्ल्यू चाहिए और आपके पास यू बार है. तो हम लोग क्या करेंगे, कैन आई से द स्टार मार्क स्टेप, टेकिंग डॉट विथ डब्ल्यू बार. ओके, तो अपना यू डॉट डब्ल्यू आ जाएगा और उसमें ये फॉर्मूला डालेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा. ठीक है, सो लेट अस टेक डॉट प्रोडक्ट यू बार डॉट डब्ल्यू बार इज इक्वल टू ए वी प्लस बी डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू. ना अगर वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन द ब्रैकेट. सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, ए वी डॉट डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू. एक सेकेंड, वी डॉट डब्ल्यू तो ज़ीरो दे दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे कैन आई से इट इज़ ज़ीरो इंटू दिस इज ज़ीरो प्लस बी. व्हाट इज बी डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू, मॉड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर. So what we got here eventually is not u dot w, u bar dot w bar is equal to b mod of w का स्क्वायर. अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालूंगा. एंड फॉर्मूला इसलिए डालूंगा बिकॉज यहाँ पे हमको थीटा चाहिए. सो लेट अस इंट्रोड्यूस थीटा. सो मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी मॉड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर. सो मॉड ऑफ डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा. सो इवेंचुअली व्हाट यू गॉट, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड ऑफ यू बार. सो यहाँ पे जब मैं पहली बार सम सॉल्व किया था आके अटक गया था. ठीक है, नाउ आई थॉट कि ये मेरा फाइनल आंसर है, बट एमसीक्यू में जो ऑप्शंस थे वहाँ पे ये चीज़ नहीं था. ओके, तो अब क्या करें. तो हियर आपको मैंने यू बार दिया है अगर आप देख रहे हो तो. ठीक है, वी हैव यू बार, यूजिंग दिस हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, कंसिडर अगेन एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सम, कंसिडर यू बार इक्वल टू ए वी बार प्लस बी डब्ल्यू बार, टेकिंग मॉड ऑन बोथ द साइड. सो लेट अस टेक मॉड, बी डब्ल्यू बार आ गया एंड एस बी से मॉड दिखा तो हम लोग स्क्वायर करेंगे. तो कैन आई से देयरफॉर मॉड ऑफ यू बार का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वी बार प्लस बी डब्ल्यू बार का स्क्वायर. जस्ट लाइक ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है, लेट अस ओपन द ब्रैकेट. तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो व्हाट आई गेट, मॉड ऑफ यू का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मॉड ऑफ वी का स्क्वायर प्लस टू ए बी. यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा बिकॉज वो स्केलर है. वी बार डॉट डब्ल्यू बार प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर. नाउ अगर आप सम को ध्यान से देख रहे हैं तो सम में दिया है v और w दोनों यूनिट वेक्टर्स है. ओके, और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा. सो व्हाट आई गेट इवेंचुअली, मॉड ऑफ यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इज नॉट यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर इंटू वन प्लस ज़ीरो प्लस बी स्क्वायर इंटू वन. सो आई गॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो इवेंचुअली व्हाट इज मॉड ऑफ यू, इट इज़ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज़ योर रिजल्ट बी. इसको हम दे देते हैं रिजल्ट ए. तो कैन वी नाउ डू सब्सटीट्यूट बी इन ए, we get the final answer. So what is cos theta is equal to b upon under root of a square plus b square. So what is theta, cos inverse of b upon अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो आई रिपीट अगेन, जब भी उनको थीटा चाहिए और आपका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं होता है तो ट्राई टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विच इज़ लेफ्ट. ये सेम चीज़ हमने नोट किया था व्हेन आई वांटेड एंगल बिटवीन, अगर याद है तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और साइड के बीच का जब एंगल निकाला था तो मैंने डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड निकाला था. ठीक है, सो सेम थिंग हैपन इन दिस सम. नाउ let's go to the final sum of this group, question 7, and this again very important result for JEE.
Okay, now in this sum they say if a bar and b bar are two unit vectors and theta is angle between them, then show that unit vector along internal bisector of a bar and b bar is a bar plus b bar upon 2 cos theta by 2. Now, in this sum, if I start with required, what I want, show that unit vector चाहिए. So unit vector का फॉर्मूला क्या था याद करो, it was vector upon its magnitude. अब unit vector किसके along है, along the internal bisector. Now if you go back to the collinear concept, उसमें हमने internal bisector का concept किया था of a bar and b bar. Okay, तो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है bisector, इसमें दो पार्ट बनाए थे हमने, याद है तो, ऑफ टू वेक्टर्स और ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल. अगर ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार था तो इफ़ यू रिकॉल देयर वाज अ फॉर्मूला सी बार इज इक्वल टू लैम्बडा ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार, याद आया. और अगर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल था देन इट वाज द प्रॉपर्टी ए बी सी डी और ये डिवाइड करता था. सो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. सो दिस इज द नोट पॉइंट विच कम्स इन माई माइंड व्हेन आई टॉक ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. तो यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप सम को ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे आप जो वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ नाइस ट्विस्ट इन दिस सम, ए बार एंड बी बार आर टू यूनिट वेक्टर्स. जस्ट गो बैक एंड रिवाइज दैट एंगल बाइसेक्टर का नोट पॉइंट. और वहाँ पे आपने स्टार्टिंग में याद है तो मैंने पूछा था दैट पहला थॉट क्या आता है, तो आपने मुझे बताया था कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, बराबर. बट पैरेललोग्राम में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता था, ये हमारा डिस्कशन का एक पार्ट था. तो इन विच डायग्राम वी यूज टू गेट डायगोनल एंगल बाइसेक्टर से मैचिंग, इट वॉज रोम्बस. और रोम्बस का यूज़ कर और सॉरी रोम्बस लाने के लिए हमने यूनिट वेक्टर्स का हेल्प लिया था. एंड दैट इज़ हाउ वी गॉट ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार एंड बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार, याद है तो. बट इन दिस सम अगर आप देखा जाए तो आपके जो दो वेक्टर्स है वो खुद ही यूनिट वेक्टर्स है. सो दैट मीन्स आपको ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उनको ऐड करेंगे तो आपको डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है. सो हियर लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. जिनको अभी भी नहीं समझा, ए बार एंड बी बार आर टू यूनिट वेक्टर्स. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊँगा तो ये मेरा ए बार हो गया, ये बी बार हो गया, एंड इज इट नॉट ये आपका एंगल बाइसेक्टर लेट्स से सी बार हो गया. सो दिस सी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया. बट हमको सी बार नहीं चाहिए, हमको यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर चाहिए, समझ रहे हैं. सो वी वांट यूनिट वेक्टर along angle bisector. Okay, we want unit vector along, that is unit vector along क्या चाहिए अपने को, c bar. Now what is unit vector along c bar का फॉर्मूला, c bar upon mod of c bar. Now what is c bar का वैल्यू, it is a bar plus b bar upon mod of a bar plus b bar, and that is your result number a. So आपके पास आंसर तो रेडी हो गया. ओके, नाउ इट जस्ट दैट मैंने क्या बोला, अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है तो मैग्नीट्यूड निकालो. तो यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. सो कैन आई से लेट मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार को हम लोग लैम्बडा लेंगे बिकॉज स्क्वायर करना पड़ेगा. सो मॉड दिखा तो स्क्वायर, सो लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड. चलो ठीक है, स्क्वायर कर दिया. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर. इज नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड बी भी 1 है बिकॉज दोनों यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर. सो व्हाट इज लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू, इज नॉट 1 + 1 2 हो जाएगा. यहाँ पे 2 मॉड ऑफ ए बी 1 मॉड ऑफ बी भी 1, तो ये कॉस थीटा बचेगा.
याद करो ये टाइप का सम भी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक पैटर्न है। 1 प्लस कॉस का पैटर्न क्या बोलता है, 2 कॉस स्क्वायर। ओके, अगर मैं लेफ्ट में थीटा डालूंगा तो राइट में थीटा बाई 2 आ जाएगा। सो विद दिस थॉट व्हाट आई गेट हियर, 2 ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बट ये हो गया आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बट ये जो मिला वो लैम्बडा स्क्वायर था, अपने को तो लैम्बडा चाहिए। सो व्हाट इज लैम्बडा, 2 कॉस थीटा बाई 2। Okay, and by the way lambda is nothing but mod of a bar plus b bar, which is 2 cos theta by 2, result b. Finally let's do one thing, substitute b in a. So therefore unit vector along angle bisector is equal to what we got, a bar plus b bar upon 2 cos theta by 2. Is that clear now? नाउ यहाँ पे एक चीज़ मुझे छोटा सा ऐड करना है, एंड दैट इज़ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। चांसेस बहुत कम है कि ये आपको एग्जाम में आएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये हमने एक्चुअली कोलिनियर वेक्टर्स में करना चाहिए था, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये जो नोट पॉइंट है आप वहाँ पे ऐड कर देना। इफ़ यू रिकॉल, हमने एंगल बाइसेक्टर का जब बात करना है तो यूनिट वेक्टर्स का ज़रूरत पड़ेगा। सो लेट्स टेक 2 यूनिट वेक्टर्स, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। मैं फिलहाल ये सम का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स, फिर ये सम पे आते हैं, ठीक है। अगर याद है तो हमने यहाँ पे इसका रोम्बस बना दिया था, बराबर, एंड देन वी गॉट अ वेक्टर अलॉन्ग इट। ओके, ये जो वेक्टर था दैट वाज सी बार, ओके, एंड दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ओके, विच वाज लैम्बडा ब्रैकेट ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। एक काम करते हैं, लेट्स रीड ऑल द डायग्राम। ओके, सो व्हाट आई हैव इज हियर, लेट अस से अपने पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, लेट्स से 2 यूनिट वेक्टर्स हो गए, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, दिस इज बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। ये क्या बनाएगा, तो एक रोम्बस बना देगा, ठीक है। सो लेट अस फॉर्म अ रोम्बस आउट ऑफ इट। यहाँ से मैंने एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इज़ आई ड्रॉ द डायगोनल। ये जो था वो इंटरनल बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर, ओके, और इसका फॉर्मूला था लैम्बडा टाइम्स ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार, बराबर। अब अगर मुझे एक्सटर्नल बाइसेक्टर चाहिए, मतलब इसके बाहर का एंगल, ओके, तो इसका बाहर का एंगल हम कैसे डिफाइन करेंगे पता है, विल एक्सटेंड दिस वेक्टर और इसको उल्टा कर देंगे। ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट अगर मैं इसको उल्टा करेगा तो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विल गेट चेंज, एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल एंगल, अगर आप समझ रहे हैं तो, ठीक है। अब ये एंगल को अगर मुझे बाइसेक्ट करना है तो मैं ये साइड एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, एंड इन दिस केस इज़ नॉट, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, लेट्स से डी बार, दिस इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और दिस टाइम अगर आप देख रहे हैं तो इफ़ आई अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ, तो यहाँ पे आपका माइनस बी बार है, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कौन से 2 वेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं, ओके, माइनस बी बार को ऐड करने वाले, ठीक है। सो दिस इज़ द वेक्टर विच यू शुड गो फॉर। तो विद दिस इज नॉट, यहाँ का फॉर्मूला होगा लैम्बडा ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, इंस्टेड ऑफ प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ऐड करना है इन कोलिनियर, ऐड इन कोलिनियर नोट पॉइंट, प्लीज़ यहाँ पे ऐड मत करना, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं इन दिस क्वेश्चन। सो इज इट नॉट हियर, नोट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल बाइसेक्टर अगर पूछा होता, बराबर, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इज़ नॉट, इंस्टेड ऑफ प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आता, माइनस। अब ज़रा याद करो, अगर मैं यहाँ पे इन प्लस के जगह पे माइनस होता, इफ़ यू कैन जस्ट सी दिस पार्ट, तो यहाँ पे माइनस, तो फिर यहाँ पे भी माइनस, ओपन करता तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और याद करो 1 माइनस कॉस बोलेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन। कुछ याद आ रहा है क्या, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ कॉस आई विल बी गेटिंग साइन। सो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये आप दोनों वैल्यूज़ डायरेक्ट बाहर कर लेना, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद एंगल बेस्ड टिपिकल सम्स ऑन योर डॉट प्रोडक्ट।
ओके, आई वुड रिक्वेस्ट, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, यही सम्स को इफ़ यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व 2-3 टाइम्स, ओके, बट मेक श्योर आपको इसके सोल्यूशन देखने की ज़रूरत ना पड़े, और उसका जो थॉट प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं पहले क्या देखता हूँ बाद में क्या देखता हूँ, हैज़ टू कम इन योर माइंड. टेक माई वर्ड, यू विल नेवर गेट स्टक अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो. ओके, सो विद दिस लेट अस एंड दिस वीडियो.